Hello student, this is Prakash sir from Sacred Heart Convent High School Khajuraho. In this video we will cover chapter first Geography, representation of geographical feature. So what chapter contain? Chapter contain contours, identification of landforms through contours, identification of settlement pattern, interpretation and analysis of topocene. So before we start chapter, I will briefly explain you about all these component. So first start with contours. So what are the contours? Contour are imaginary line, or we can say that it's a imaginary line. Okay, not actual line, it's imaginary line which help us to locate the valley, hills, plateau, peak, slope and lots of things on a topographical sheet. Okay, I hope you understand. Look at here, these are the contour line. Okay, these are contour line. Here you observe. Okay, with the help of this contour line we can easily find whether the area is mountainous, valley point, plateauneous or hills. Okay, we can also get information about the slope and sliders. Okay, I hope you understand. Then identification of landform through contours. So what is the meaning of that? So first you have to know the landform. If we talk to about India, there is a several landform. So what are the landform? Landform are the places of presented landform are the places which are presented on a earth surface, like mountain, plateaus, rivers, valleys, iceland, coastal plain. If we talk to about India, we can get different landform. Okay, so India divided in several landform. Look at this map. The Greater Northern Plain. Okay, this one is a Greater Northern Plain. Okay, this one is Greater Northern Plain. The Great Mountain of the North. So these are the Great Mountain of the North. Deccan Plateau, Indian Desert, coastal region of the India. So these are the two coast, Eastern Ghat, Western Ghat. Okay, so India divided in several landform and some island. Few island and these are presented in a Bay of Bengal, like Andaman and Nicobar Island. Okay, here these are presented, and few island presented in Arabian Sea, like Lakshadweep. Okay, so I hope you understand the landform. If we talk to about Himalaya, Himalaya also categorized in three parts. These part are Himalaya categorized in three parts. Here is one part is Greater Himalaya, then Lesser or Middle Himalaya, then Outer Himalaya. All the Masurian hill station present in a Outer or Lesser Himalaya. Okay, then next one is identification of settlement. So here we can find all the settlement, that means linear settlement, dispersed settlement,
Then interpretation of analysis of topo sheet. So when we cover this topic, here we analyze the topo sheet. Here also you find the topo sheet. This type of arrangement called topo sheet. Here you find foresty region, mountainous region and river, mountain, lots of things, है ना, with particular coordinate. एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के साथ आप ये सारी चीज़ें फाइंड करते हैं. सो व्हेन वी कवर टोपो शीट टॉपिक, आई विल डिस्क्राइब यू ऑल रिलेटेड टू टोपो शीट. ओके, वैसे अभी मैं थोड़ा सा टोपो शीट के बारे में आपको बता देता हूँ कि टोपो शीट क्या होती है. लार्ज स्केल मैप होते हैं. लार्ज स्केल मैप दैट मीन्स कि इट्स शो मिनट डिटेल ऑफ एनी प्लेसेस. ओके, then topography sheet also contains several sign and symbol of color for representing particular place. Okay, and there is also few component of topo sheet like title of the topo sheet, scale of the topo sheet, grid, contour line, color, conventional sign and symbol. These are component included in a topo sheet. So we will discuss this all when we cover topo sheet topic. Okay, so let's start with contours. So what are the contour? Contour are imaginary line joining the place having the same elevation above the sea level. So what is the mean that? इसका मतलब ये होता है, आपने सीट में कई बार मार्किंग देखी है 120 डिग्री, 120 डिग्री, देन अपसाइड देखोगे 130 डिग्री, देन अपसाइड 140 डिग्री. तो ये क्या होगा, तो सेम एलिवेशन. तो जो 120 के एलिवेशन होंगे हम उनको ज्वाइन करते जाएंगे तो हमें ऐसी कुछ इमेजिनरी लाइन मिलेंगी. अगर कंटूर इंटरवल 10 मीटर का है तो इसके बाद हम 130 की लाइन को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो हमें ऐसा कुछ शेप मिलेगा. देन 140 की लाइन को. तो ये सारा डिपेंड करता है कि कंटूर इंटरवल क्या है. तो ऐसे कंटूर लाइन क्रिएट हो जाती हैं. और एडवांटेज क्या होता है कंटूर लाइन का? वी कैन इजीली डिस्क्राइब ऑल दिस फीचर ऑन अ मैप सच एज वैली, हिल्स, प्लेटो, पीक एंड स्लोप डिस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ कंटूर. ओके, if we talked about geographical region, there is a large number of relief feature while representing them in a topographical map. The shape and size contour vary with the variation of the landscape. तो कंटूर की जो शेप और साइज होती है वो लैंडस्केप के साथ वेरी करती जाती हैं. तो आप ये एक चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कंटूर के बारे में वर्टिकल इंटरवल और हॉरिजेंटल इंटरवल के बारे में बताया गया है कि कंटूर में वर्टिकल इंटरवल और हॉरिजेंटल इंटरवल कैसे होते हैं. तो यहाँ हम बात करते हैं कंटूर इंटरवल की. सो कंटूर इंटरवल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वर्टिकल इंटरवल और हॉरिजेंटल इंटरवल. सो लुक एट दिस पिक्चर. ये एक प्लेटो रीजन्स का, और वी कैन से दैट कि माउंटेन, बट प्लेटो रीजन ही हम इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि ये 550 मीटर्स का ही है. और वी कैन कंसीडर माउंटेन. ओके, बट देयर इज अ नो पीक. ओके, सो लिसन. तो ये एक माउंटेन रीजन का कंटूर डायग्राम आपको दिखाया गया है. आप यहाँ देख सकते हैं. आप यहाँ देखिए ये लिखा है मीटर 600, 550, 50, 450. सो वी कैन आइडेंटिफाई हियर द कंटूर इंटरवल क्या है. कंटूर इंटरवल यहाँ पे 50 का है. ओके, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि 50 मीटर के बाद जो नंबरिंग है वो चेंज हो रही है. तो यहाँ से हमें कंटूर इंटरवल समझ में आ रहा है कि ये 50 मीटर का है. ओके, अब आप यहाँ पे देखते हैं कि नीचे जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है स्लोप, वहाँ पे जो कंटूर है उसकी स्टार्टिंग क्या है 400 मीटर से है. तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे और जो कंटूर है वो ज़्यादा ब्रॉड है. जैसे जैसी डिस्टेंस बढ़ती जाती है कंटूर यहाँ पे पास होता जाता है. तो आप क्या देखेंगे कि एलिवेशन इंक्रीज होने के साथ यहाँ पे कंटूर की लाइन छोटी होती जाएगी. तो अगर आपको एज अ कंटूर ड्रॉ करना है तो यहाँ पे क्या होगा कि 400 के पॉइंट्स होंगे, फिर 450 के पॉइंट्स होंगे, 60 के होंगे. आप उनको अरेंज करते जाएंगे तो कंटूर ड्रॉ हो जाएगा. ओके,
तो ऐसे होता है। अब बात करते हैं हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट की। तो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट क्या कहलाता है? हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट कहलाता है द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कंटूर लाइन, फर्स्ट कंटूर लाइन एंड सेकंड कंटूर लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है हॉरिजेंटली फॉर्म में, तो इसको ही हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कहते हैं। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या हुई? द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर, ठीक है। अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिस्टेंस कॉल्ड हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देन वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये वर्टिकल फॉर्म में जब टू कंसेक्यूटिव कंटूर के बीच की जो डिस्टेंस होते हैं उसको वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं। आई होप यहाँ से आप कंटूर की डिस्टेंस, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट और वर्टिकल इक्विवेलेंट के बारे में आपको समझ में आया होगा। चलते हैं बुक की साइड। यहाँ पे आप देखते हैं एक और ग्राफ दिया गया है। ओके, समझिए यहाँ पे कंटूर लाइन्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपको हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट के बारे में देखना है। तो टू कंटूर के बीच का जो डिस्टेंस होगा हॉरिजेंटली फॉर्म में, ठीक है, इसको कहेंगे हम हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। और ये जो टू कंटूर के बीच का डिफरेंस रहेगा इसको हम बोलेंगे वर्टिकल इंटरवल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कंटूर आइडेंटिफिकेशन। कंटूर को हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कंटूर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो हेयर यू फाइंड वन थिंग, स्पेसिंग ऑफ कंटूर हेल्प इन नोइंग द स्लोप। ओके, अगर कंटूर के बीच में जो स्पेसिंग है तो दैट मीन कि वहां पे कहीं स्लोप है। आप देख सकते हैं, आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये स्लोप है। तो जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज होगा आप देखेंगे ये कंटूर के बीच की जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज होती जाएगी। सो व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम हेयर वी कैन गेट व्हेन द स्पेसिंग ऑफ कंटूर इज लार्जर देयर इज अ जेंटल स्लोप। ओके, if space between two contour is lesser there is a not जेंटल स्लोप। ओके, तो वहां जेंटल स्लोप नहीं होगा, वहां क्या होगी, वहां सडनली सैडल टाइप होगा ऐसे। ओके, एज होगा वहां पे, है ना। तो ये आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है। अ शार्प एज ऑफ एनी एलिवेटेड लैंड विद अ सडन वर्टिकल फॉल इज कॉल्ड द स्टीप स्लोप। सो व्हाट वी कॉल दिस वन, स्टीप स्लोप। जो सडनली स्लोप होता है उसको स्टीप स्लोप कहते हैं। जो एक कांस्टेंट स्लोप होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेंटल स्लोप कहलाता है वो। ओके, तो जेंटल स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट स्लोप जो काफी टाइम से सेम स्लोप में जा रहा है, बट सडनली जो स्लोप आता है उसको हम स्टीप स्लोप कहते हैं। तो बेसिकली कंटूर को वी विल आइडेंटिफाई विद द टू स्लोप, जेंटल स्लोप एंड कांस्टेंट स्लोप। ओके, या स्टीप स्लोप। देन नेक्स्ट पॉइंट, आप इस शेप को देखिए, ये एक प्लेटोस का शेप है। आप यहाँ देख रहे हैं ये सेम एलिवेशन है, दैट मीन यहाँ पे कोई भी अंडुलेशन फॉर्म नहीं है। तो आप देखते हैं कि जो कंटूर है वो सेम टाइप से दिख रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अभी स्टीप स्लोप आता है तो आपने देखा कंटूर लाइन पास हो गई है। फिर स्टीप स्लोप के बाद जैसे ही जेंटल स्लोप आता है तो आप देखते हैं कंटूर लाइन के बीच में गैप हो गया है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस गैप वी विल आइडेंटिफाई वेदर देयर इज अ स्टीप स्लोप, देयर इज अ जेंटल स्लोप, okay, whether this one is a plateaus or this one is a mountainous region. Okay, so I hope you understand this all. In next video we will discuss remaining part of the chapter. Thank you for watching.